सबसे पहले तो अंकित तुम अपने एजुकेशन के बारे में बताओ। व्हाट यू व्हाट ऑल हैव यू स्टडीड, है ना, इन योर स्कूल एंड ग्रेजुएशन एज वेल एंड Sir, I, इवन आफ्टर दैट। okay. Sir, I have completed my higher and secondary education from Giridih Public School, Giridih, Jharkhand, and I have taken commerce after my tenth high school, and then after commerce, I post which I enrolled myself for English literature from University of Delhi, and back in 2020 I completed my graduation. Then I moved to Ranchi for preparing civil services, uh, provincial civil services. It was, and I have I have written mains twice. Uh, it's, Okay, so you have kept on changing your stream and career option. First you did commerce, and then English literature, then UPSC preparation. So why you are not aligning yourself with a certain career line, or now you are also looking for an MBA program? So what's the problem in determining a career option for you? Actually, sir, when I was opting for when I was opting for English literature, because my parents suggested me to go for com, but I think that I was not interested for accountancy, and at that time I was not interested in accountancy. That's why I thought that English honors is the best option for me because I want to learn literature. And then, sir, when I have completed my graduation, then there is the pandemic. COVID came in 2020, after which I have to move my hometown. But then, sir, there is a lot of time, so I was I actually I've taken keen interest in history and some other subjects like polity, and that's why I started for preparing provincial civil services, and I cleared the prelims examination by studying for 2 3 months. Then I have developed developed a kind of passion, not kind of concept. Kind of. I mean, I Okay. So middle class pressure of being officer. yes. कि हो ही जाना है तब मतलब you can be very truthful about your career choices, ठीक है? Okay. So but you have to end it with your current endeavor of getting into an MBA program and making your career in business world. तो इससे आपको खत्म करना होगा, ठीक है? ठीक. You don't have to linger a lot upon your UPSC or JPSC preparation, Okay. ठीक है? कहीं ना कहीं से मतलब जस्ट इंटरवीनिंग यू ईयर, कहीं ना कहीं से ना आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस और बातचीत से ये कमिटमेंट दिखना चाहिए कि नाउ यू आर कमिटेड टू दिस प्रोग्राम एंड कैरियर अहेड विद दिस प्रोग्राम, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, तो when you decided to go for an MBA program, uh, haven't you applied or thought of going for a normal MBA like MBA in marketing finance or normal MBA? Why are you coming to, and if you have thought of that also, then why are you coming to IFM for MBA in forestry management? First management ही ना first choice है ना तुम्हारा? Yes, sir. Forest हाँ, management. तो हाँ, the question is the same now. Actually, sir, the main थोड़ा issue. स्क्रीन नीचे करो, मतलब बहुत तिरछा सा लग रहा है। चलो हाँ, ओके। एक मिनट. ठीक है. रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा ना क्वेश्चन? ठीक है. Actually, sir, the main thing is basically I come from Jharkhand, and this is a tribal state where Jal, Jangal, Jameen are deeply interconnected with the cultural and spiritual नहीं तो fabric. तुम मिस कर गए ना, देखो ये तो ठीक था हाँ, मतलब। ये हम बता रहे हैं कि मैं स्टार्ट करना था ना कि एमबीए तो तुम करना चाहते ही थे, हम्म, बट दिस वाज आल्सो अ वेरी फेवरेबल ऑप्शन फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले वो डाला था ना कि नॉर्मल एमबीए,
क्यों नहीं? करना चाहते थे हाँ हाँ। तो हाँ, तो बोलो कि हम नॉर्मल एमबीए भी कर सकते हैं, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज टू मेक कैरियर इन बिजनेस वर्ल्ड, है ओके। ना? बट इफ आई गेटिंग ही दिस कोर्स, इट विल अलाइन बाय दिस थॉट जो तुम बोलने वाले हो तुम। ओके ओके ठीक ओके है, जस्ट जस्ट स्पीक द थॉट जो तुम बोलने वाले थे, आई लेट यू स्पीक दैट। ओके सर, I want to pursue MBA from a good institute for my better career growth. And I have lot of I have looking for best options, after which I got this forestry management. And this is the best premium institute in India. And the main thing is that I come from Jharkhand, which is a tribal state in which Jal, Jangal, Jameen are deeply interconnected with the cultural and spiritual fabric of local communities. For these local communities, forests are very sacred, and they did not cut. They didn't cut forest, and they always want to protect the forest because their beliefs are that the forests are their deities resides in the forests and in the trees. But from the few decades, I am observing that in Jharkhand there are many industries are going to mm, there are many industries which creating very problem, like they are clearing forests, and they are depleting minerals. And the main concern of depleting minerals is when you are going to extract minerals, you have to cut the forests. So this is the very big major problem for the tribals. And so that's why this is the main reason that I want to pursue this course from IFM. And this program offers me a well-rounded curriculum that integrates core management. प्रॉब्लम क्या है ना अंकित यहाँ पे, मतलब when I'm listening to you, Mm, it seems like you are getting more into rebel mode, that trees should not be cut down because the indigenous people or the people who are staying, native people who are staying in Jharkhand, they don't have to do anything with minerals. You know, they don't know even actually what value they or minerals have actually. So mm, they, for them, the trees above the minerals are more important. You know, so they will always be, they will always not be favor of, not be in favor of cutting trees or forest for the mineral excavation. But but since but the way you are speaking, it is actually suggesting that you will be acting against these development. okay. बट ऐसा नहीं है ना, मतलब ये बहुत लेफ्ट हो जा रहा है। बहुत लेफ्ट हो जा रहा है। ओके। और इसमें मैनेजमेंट का या आगे लर्निंग का कोई बहुत स्कोप नहीं है। समझ ठीक है। रहे हो मेरी बात? हमारा फॉरेस्ट्री पढ़ने का पर्पस ये नहीं है कि हम पेड़ को कटने नहीं दे, फॉरेस्ट को कटने ही नहीं दे, है ना? इट हम्म, शुड बी फाइंडिंग अ वे फॉर मिनिमम डिफोरेस्टेशन फॉर डेवलपमेंट, ओके। और finding arrangement, or once deforestation has been done in a particular area, how to reforest that area. तो सर इसमें हम अपना अप्रोच क्या डालें कि क्यों नॉर्मल एमबीए नहीं करके हम। नहीं, तुम बात सही कर रहे थे, उस दिन भी हम लोग बात इस पे सही कर रहे थे कि झारखंड के होने की वजह से यू आर कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, ओके। बिकॉज यू हैव सीन, जो वहां तक बोलेगी कि इट्स अ फैब्रिक where people are very much attached towards हम्म, forest area, they are getting their livelihood from them, है ना? And they consider them as an home. तो हम्म, वो कनेक्शन है तुम्हारे पास, and that's connection actually pushes you for this course, because this course actually this course make you capable to work in work for betterment of the forest area. ओके। ऐसा नहीं फर्श कटने ही नहीं देंगे, एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे, चिपको आंदोलन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम्म, मान लो कि इफ विल गो टू उत्तराखंड, तुम गए थे अभी ऋषिकेश तक, तुम अगर अभी उस लाइन में जाओ, लैंसडाउन वाले लाइन में, तो हम्म, वहां पे ना बहुत पेड़ काटे गए हैं अभी, मतलब सड़क किनारे, क्योंकि वो सिंगल लेन की सड़क है। हम्म, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ डबल लेन सड़क, मतलब रोड देयर, तब तो वो कटेगा ही। इफ यू वांट डेवलपमेंट,
है ना, we have to sacrifice little bit from the nature also. But the problem is, if you are a person from forest management, Hmm. you will be talking about compensating that loss. Okay. So, you know, you will be talking about creating a process which harms less, and if if there is any harm, it is compensating in another way. समझ रहे हो? या फिर when you saw that कि गवर्नमेंट कई बार तो काट रही है खुद से, कई बार पूरे एरिया को बोल देती है फॉरेस्ट रिजर्व है, nobody should enter in that forest, nothing should be taken out from this forest. Hmm. तुमने वो देखा, कंटारा मूवी देखा? Yes, sir. इट्स वेरी मच वो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोकल कम्युनिटी जो उस पे लाइवलीहुड बेस्ड है, लाइवलीहुड भी छोड़ो, उनके घर के कुछ एक्टिविटीज फॉरेस्ट पे बेस्ड है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको भी मना कर रहा होता है। हर तो स्टेट में फॉरेस्ट ये होता है, रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ, तो तुम वहां पे भी जब लाइवलीहुड का लॉस हो रहा है या फॉरेस्ट कभी दिखता है कि द कई बार ये भी होता है कि पीपल आर सो रिलायबल ऑन फॉरेस्ट बिकॉज दे आर एंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दे आर कटिंग इन अ हायर रेट, है ना, हम्म। सो दैट इन कमिंग फ्यूचर द फॉरेस्ट विल गो ऑब्सोलीट, मतलब फॉरेस्ट रहेगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे यू नीड टू इंटरवीन कि the rationing of cutting of forest or taking resources from forest in such a way so that it should be sustainable, forest will stay for a longer period of time। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, मतलब जितना माइनस हो रहा है उसको कहीं से प्लस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, ये अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब, और जहां पे क्योंकि पेड़ आप तो कहीं, कटेंगे ही। हाँ, और फिर कहीं पे तुमको ये भी काम मिल सकता है कि कहीं पे फॉरेस्ट ऐसे किया जा चुका है, मतलब अर्लियर द गवर्नमेंट कुड नॉट टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया और प्राइवेट कंपनी विथ देयर ग्रीड, है ना, उसने फॉरेस्ट एरिया को बहुत वो खत्म कर दिया। नाउ हम्म। इन दिस केस, हाउ एज अ फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट ग्रेजुएट और अ पर्सन you will reforest that area, what scheme you will create, how to arrange the resources for that, what policy you will make, है ना। तो हम्म। और इसमें इन सब के साथ आप क्या पढ़ रहे हो, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, हम्म। कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही तो काम करोगे ना, अकेला आदमी तो नहीं काम करेगा। हाँ। द ऑर्गेनाइजेशन विथ विच यू आर वर्किंग देयर यू विल बी हैविंग, इफ यू आर मतलब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है तो आपके प्रोसेसेस इफेक्टिव होंगे, है ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहा था कि मैनेजमेंट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क ये सब नहीं देखता नहीं देखता है। है ना। यू विल ट्राई टू, you will be able to define right expectations from your work, you will able to achieve that expectations, है ना, you will able to achieve that with limited resources। तो ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो गई। you will be knowing that how organization function, how एग्जैक्टली। 100 people together function in a group, है ना। हम्म। वो ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्रुप भी नहीं होता ना, वो एक हायरार्की की तरह वो डेवलप होता है। तो दैट हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, है ना, हाउ अ सप्लाई चेन इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि जब आप कुछ भी कोई प्रोजेक्ट करोगे तो दैट विल बी डन एज एन सप्लाई चेन, कि कहीं से रॉ मटेरियल निकलेगा या कहीं पे वो मैन्युफैक्चर होगा या कहीं पे बनेगा, जैसे सप्लाई चेन होता है। तो यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड का एक टास्क होगा। तो विथ मैनेजमेंट लर्निंग, द द ऑल दोज थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग टू यू, कि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप वहां पे फुलफिल कर पाओगे। ठीक है। ठीक है सर। तो तुमको जो झारखंड से इंस्पिरेशन लेना है वो एक कनेक्शन के तौर पे लेना है, एंड you have to tell with that connection कि you are bothered about the loss of forest हम्म। and loss of livelihood from the forest, ओके। and you also see that forest can also be a great help in increasing our GDP, ठीक है। but again हम्म। we should not be greedy over those resources that कि फॉरेस्ट ही हम जल्दी खत्म करते हैं। हम्म। सो हमें जीडीपी बढ़ाना है विदाउट एग्जॉस्टिंग द फॉरेस्ट रिजर्व। सो डू वी हैव, और ऐसा कुछ हमारे पास
क्या मतलब ऐसा कोई रिसोर्स फॉरेस्ट से निकल के आ रहा है जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट कर सके? इनफैक्ट मतलब कुछ नहीं तो एक फॉरेस्ट एरिया, अच्छे फॉरेस्ट एरिया को हम जब टूरिस्ट एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो उससे भी कितना आता है तुम्हें पता ही है, कितना सारा जीडीपी आता है। तो झारखंड में किया हुआ है। हाँ, झारखंड कई जगह किया हुआ है, उत्तराखंड में भी किया हुआ है कई जगह, सफारी वगैरह तो। और वो तो बहुत बड़ा रिसोर्स सोर्स है ही इनकम का। और हम्म, भी कई चीजें, मतलब जो वहाँ की लकड़ी है जो खुद से टूट के गिर रही है, या फिर कोई सर्टेन काइंड पेड़ है या फल है, तो हाउ टू, या कोई जड़ी बूटी है, मेडिसिनल वो है, वैल्यू वाली कोई पेड़ है, तो हम्म, उसको कैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए। एंड इट शुड बी, जैसे होता है ना कि काटने या छांटने का प्रोसेस ऐसा रहना चाहिए कि फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, वहां के हैबिटेट को नुकसान ना पहुंचे, हम्म, है ना। अब हम्म, ये नहीं कि हम फॉरेस्ट में शेर मारने लगे और उसको बेचने लगे, वो नहीं, है ना, उससे तो हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा। तो यूटिलाइजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज in a valuable way so that it can provide livelihood to people and also GDP to the country। अब ये भी एक प्रॉब्लम है जो हालांकि तुम्हारे कोर्स में ये नई बात की जाएगी कि हम्म, फॉरेस्ट आर काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सो okay, नो इंडिविजुअल हैज गॉट राइट ओवर द फॉरेस्ट एरिया, है ना। इट शुड बी देयर फॉर द पीपल, फॉर एवरीवन। तो इसमें ये बात आती है कि कैसे हम इसकी गवर्नेंस करें सो दैट forest should be forest or all such kind of natural resources should be used in developing our country for the poor people perspective। हम्म, क्योंकि सिर्फ कॉरपोरेट का हमें वो नहीं रखना है, ठीक है। तो ये तुम झारखंड से रेफरेंस लो, लर्निंग और कैपेबिलिटी आउटकम इस टर्म में बात करो। आई थिंक अच्छा हुआ कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, तो यू कैन वॉच अगेन टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स, है ना, कि क्या क्या हमें बोलना वहाँ पे करना है, व्हाट आर द है। ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव विद द फॉरेस्ट मैनेजमेंट कोर्स। तो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन बताओ। और हालांकि नेक्स्ट इसी से होता, बट आई एम श्योर कि उसको भी तुमने उस तरह से नहीं तैयार किया होगा कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू अचीव इन योर फ्यूचर विथ दिस पर्टिकुलर कोर्स, है ना। तो वो यहीं से निकल के आएगा, इसी का एक बड़ा फॉर्मेट कि यू विल बी द की डिसीजन मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर और समवन हु होल्ड्स द अथॉरिटी or manage the project in a big way. And you can be counted as the most resourceful person in forest conservation or forest based livelihood generation or something like this. You हम्म, should be or you want to be the face in this particular area, है ना, ग्लोबल फेस, कि हम्म, आप यूएन और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रिसिएट किए जा सको, हम्म, है ना। तो हम्म, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है विद द कोर्स। हाँ ये सही है। ठीक है, कर लेंगे इसको, ओके। तो इसको भी कर लेना। हम्म, फिर अ, आगे आगे मुझे ये बताओ कि जो जो अभी जो फॉरेस्ट के जो वो है, जो पॉलिसी है उस, क्या बोलते हैं, मतलब टेल मी अबाउट द पॉलिसी फॉर फॉरेस्ट फॉर द नेशनल, मतलब फॉर द सेंटर, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द झारखंड गवर्नमेंट। तुम पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं सर, पॉलिसी नहीं पढ़ा। अरे वही तो बहुत मेन है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें। ओके। कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं उसमें, मैंने उस दिन पीडीएफ निकाल के तो दिया तो था कि फॉरेस्ट का सर्वे सर्वे भी नहीं देखे होगे तुम पता ये। है, फॉरेस्ट तीन चार तरह के होते हैं, क्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, सर्वे में वैसे नहीं दिया हुआ है, हाईली डेंस, अच्छा मिनिमल। ये, हाँ, डेंस तो फॉरेस्ट उस है। तरह का झारखंड में कितना फॉरेस्ट कवर है, 29.76%। कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का भी अलग अलग होता है थर्टी ना। थ्री परसेंट है सर। नहीं, 33 तो आई थिंक एक जनरल है ना पूरे जोग्राफिकल एक्सपेक्टेड लिस्ट का। उतना ही है सर, 33%। लेकिन लेकिन झारखंड में तो ज्यादा होना चाहिए मतलब तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ। if a certain area is is known to be forest area, तो हम्म, वहां पे हमारी जो फॉरेस्ट कवर का वो है वो ज्यादा होना चाहिए ना। वी कैन नॉट
have the same goal for Bihar and Jharkhand. हम्म। समझो ना, बिहार का एरिया मैदानी एरिया, वहां फॉरेस्ट ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स झारखंड का जो एक्सपेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होगा वो ज्यादा परसेंटेज में होगा। देखेंगे। ये सब चीज समझो पहले थोड़ा, हम्म। कुछ और डेप्थ में जाओ। ठीक है। और इसके बारे में पढ़ो, थोड़ा पॉलिसी के बारे में पढ़ो, और कल दोबारा इंटरव्यू दो, इससे नहीं ठीक काम चलेगा। ठीक ठीक है है। सर। वो जो ये आईएफएम लिख के भेजे थे वो आप देखे थे क्या? नहीं, उसको देखा नहीं था, मैं देख लेता हूँ। हम्म।